चलिए, so let us complete in reverse order. पहले 17 complete कर लेते हैं, then we complete 7. चलिए, let us complete exercise number 17 first. I want volunteer to read it. Sir, may I? અને ચેટ બોક્સમાં રિપ્લાય હમણાં નહીં કરતા બીકોઝ મને સંભળાશે નહીં. મેં તમને કીધું મોબાઈલ તો ત્યાં સેન્ડ પર ગોઠવેલો, મને શું ખબર પડે. એટલે અનમ્યુટ થઈને કહેજો જે રીતે. હા હા યસ Sir, may I? રોમભાઈ હા વાંચો. A meter stick is balanced on a knife edge at its center. When two coins, each of mass 5 gram, are put one on the top of the other. Oh bhai, Yes, sir. we are solving for meter stick. This is a question based on the principle of moment you people have studied. To balance at, पहले तो जब कुछ मास नहीं रखा होगा, that means it is balanced at Center of mass. हाँ या सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होगा, बराबर है. Then you put two coins. Each of mass 5 gram. हाँ तो दोनों कॉइन का मास m1 equal to m2 equal to 5 gram. Yes, proceeding further. And put on the top of other at the 12 centimeter mark. This is placed at 12 centimeter mark. Further, the stick is found to be balanced at 45 centimeter. एक minute. Meter stick after putting this coin balanced at 45 centimeter. Yes. What is the mass of the meter stick? इसका मास कितना होगा मीटर स्टिक का, ऐसा पूछा है, बराबर. So let us draw this meter stick. You know that for meter stick total length, मीटर स्टिक है ना तो 1 मीटर होता है, इसलिए तो इसको मीटर स्टिक बोलते हैं, तो 100 सेंटीमीटर. So this is a meter stick that we are talking about. ये मीटर स्टिक हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं. आपने कभी देखा होगा ये मीटर स्टिक को, तो इसमें से मार्किंग होते हैं, बराबर है. 100 सेंटीमीटर का है ये. So this is at 0 centimeter and this is at 100 centimeter. जब इस पे आपने कॉइन वगैरह कुछ नहीं रखा होगा तो ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का होगा. So obviously it is balanced at its center. Balance it at center, that means at 50 centimeter mark. बराबर. Now you have placed two coins one on each other. बराबर. तो यहाँ पे आपने कॉइन रखा 12 सेंटीमीटर के मार्क पे, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे आएगा. 0 1 2 3 4 ऐसा करके 12 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे आएगा. यहाँ पे आपने दो कॉइन रखे हैं, दोनों कॉइन का मास सेम, बराबर है. कॉइन का मास 5 ग्राम है. फर्स्ट का मास भी 5 ग्राम, सेकंड का भी मास 5 ग्राम, दोनों का मिला के टोटल हो जाएगा 10 ग्राम. तो उसकी वजह से एक वेट लगेगा, दैट इज m1 plus m2 of g. You agree with me? Yes, sir. Sir, yes. Okay. Initially Yes, it was sir. balanced at 50 centimeter. That means at center. But now as you put this coins of 5 gram at the 12 centimeter mark, ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटर पे आया तो सेंटर से लेफ्ट साइड वाला मास बढ़ जाएगा. और हम जानते हैं कि जहाँ पे मास बढ़ जाता है तो वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. डू यू एग्री विथ मी? Agree with Yes, you, sir. sir. ओके. तो फिर उसका जो वेट है, इसका खुद का वेट मीटर स्टिक का, वो सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास बैलेंस होता है, तो वहां पे मास उसका कंसंट्रेट हो जाएगा. तो फिर वो उसका खुद का वेट, इसको मैं W डैश बोल देता हूँ, तो mg वो यहाँ पे लगेगा, बराबर. और ये आपको दिया गया, दिस इज एट 45 सेंटीमीटर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पे ही रहेगा. सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा क्योंकि मास लेफ्ट साइड वाला पड़ गया, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उधर ही रहेगा. डू एग्री विथ मी? Sir, Yes, yes. Sir, yes. ओके. अभी हमें पूछा गया है कि आप ये मास फाइंड करके दीजिए, बराबर. We know that for equilibrium there are the two conditions, one which is called a condition of rotational equilibrium and another is which is called a translational equilibrium.
हमने ये टाइप के जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें दोनों अप्लाई किया था और दोनों अप्लाई करके फिर अननोन फाइंड किए। What I asked you is that how many unknowns are there in this question? We want to find out the mass of meter stick. तो कितना unknown છે આપણી પાસે? एक एक। One अगर एक and unknown only है तो one. हाँ, तो एक unknown है तो mathematics says that if one unknown then we require One one equation. equation. हाँ, तो પછી either you can apply a equation of translational equilibrium or you can apply the equation of rotational equilibrium. બેમાંથી ગમે તે એક લગાવશો તો ચાલશે. Now you have to decide which is to be applied. अब ये तो पता चल गया कि दोनों में से कोई एक ही इक्वेशन लगाना है, लेकिन अभी हमें चूज करना है कि हम कौन सा लगाएंगे। जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का लगाओगे तो ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा वो अपवर्ड लगेगा, वो रिएक्शन फोर्स हमें पता नहीं है तो वो अननोन बढ़ जाएगा। Rotational. सो यू नीड टू अप्लाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम। गेटिंग, पहले मैंने चूज किया कि एक ही इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाना है, फिर उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, आइदर यू कैन अप्लाई ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल लगाते तो ये दो फोर्स है, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो दूसरा एक फोर्स रिएक्शन फोर्स यहाँ पे अपवर्ड लगना चाहिए था, वो हमारे पास है नहीं। सो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। What is the condition for rotational Sigma equilibrium? tau vector equal to 0. सिग्मा एफ वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। ओ भाई तारो ઊંધું બોલવું એવું જરૂરી છે? For rotational equilibrium condition is sigma tau vector is 0, and इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे, मैंने आपको बोला था जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास अवेलेबल हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही रेफरेंस लो। Now you tell me that how many forces are there which can produce the torque in this Two. case? Two. Which are them? एक वो कॉइन का मास, W and W dash. डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश। ओके, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। But these distances are to be measured from center of gravity. Keep that thing in your mind. પડે છે ખબર? Yes or no? Yes, sir. Okay. तो आप मेरे को ये बताइए कि एक मिनट, आ फोर्स છે ને આ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઉપર આવે, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, સેન્ટર ઓફ માસ તો ત્યાં શિફ્ટ થઈ ગઈ। चलिए, we will take this about the center of gravity, मतलब point of balance। हमें बोला गया है कि this meter stick is balanced, एक मिनट, हाँ, this meter stick is balanced at 45 centimeter, balanced at 45 centimeter, तो ये point of balance को हम क्या बोलते हैं? Point of the point of balance is called center of gravity। आप देखिए मैंने center of gravity का जब definition लिखा तब आपको बताया था, the point at which the body balance is called center of gravity। तो पहले जो 50 पे था अभी वो 45 पे हो गया। Do you agree with me? Sir, yes. Okay, now you can tell me that we are having a two torques which can be produced by W and W dash। चलिए, ये वाला जो टॉर्क होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कॉइन के वेट पे जाना है तो आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? Minus I cap. माइनस आई कैप। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? Minus J. Minus जे कैप। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई क्रॉस जे इज के, प्लस के आया Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है? Yes, तो sir. ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वेट पे जाना है, मीटर स्टिक के वेट पे, तो फिर आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? Plus I cap. क्रॉस माइनस जे कैप, तो ये क्या हो जाए? ये क्लॉकवाइज। बराबर है, खबर पड़ी? मैं चेंज करूँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी Sir, और yes. नहीं होगा, वो 45 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, ये मेरा गलती हो गया था। चलिए, अभी एक टॉर्क क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दे मस्ट बी बैलेंस। इन दोनों को बैलेंस करना है तो पहले ये वेट, कॉइन का वेट कितने डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाला डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये कितना सेंटीमीटर है? 33 centimeter. और ये कितना आया? 45। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी कैन आई से इट इज 45 minus 12,
33. यस। सिमिलरली अगर आप मीटर स्टिक का खुद का वेट देखोगे तो ये पूरा मीटर स्टिक का जो वेट है वो कितने सेंटीमीटर पे? 50. 50। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको कितने सेंटीमीटर पे मिला? 45. तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज 50 माइनस 45। डू एग्री विथ मी? Yes, Agree sir. with you, Yes, sir. sir. चलो ये कॉइन का वेट है સર આ ફરીથી और ये એક્સપ્લેન मीटर। કરો ને શું एक्सप्लेन करूं बेन? આ વડો જે તમે સ્ટેપ લખ્યો ને આનું વેટ લેવાનું, આ ટોર્ક પ્રોડ્યુસ કરે છે, એનું ડિસ્ટન્સ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી થી ગણવાનું, એટલે આ ડિસ્ટન્સ ગણવાનું. ધીસ ઇઝ 12 સેન્ટીમીटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ इज 45 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 45 माइनस 12 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये पूरा डिस्टेंस 50 है, ये डिस्टेंस 45 है, तो ये डिस्टेंस 50 पूरा माइनस 45 करके 5 मिल जाएगा। नाउ डू यू एग्री विथ मी? હા સર ખબર પડી ओके। अभी कॉइन का मास है 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम इंटू जी वेट इंटू 33। जो तुम्हारा आंसर ग्राम में आवशे, बिकॉज आई हैव टेकन दिस इन ग्राम। मीटर स्टिक का मास m इंटू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड 5 gg get cancelled out. If you make m as a subject of equation, it will be 33. 5 plus 5 is 10 upon 5, 5 2s, 66. so mass of 66 ग्राम आ जाएगा मीटर स्टिक का मास। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. 0.066 kg. 0.06 kg, हाँ बराबर। गेटिंग विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. आप अंडरलाइन कर दीजिए पॉइंट ऑफ बैलेंस एट 45 सेंटीमीटर आपके न्यूमेरिकल मतलब તમારે ખબર પડે કે પહેલા જે પોઈન્ટ ઓફ બેલેન્સ પર હતું, નાउ दिस स्टेप्स एट 45 सेंटीमीटर। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Agree with you, sir. Sir. ओके, सबको पता चला भाई? Yes, sir. Sir. બોલીએ। સર મતલબ એવું ને કે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ને રેફરન્સ લીધું અને પછી એના દૂર જે છે પેલો બે કોઇન્સ છે એ અને સેન્ટર ઓફ પેલું જે ફલ્ક્રમ હોય એ વસ્તુ, એ બંનેનું ડિસ્ટન્સ જે છે સેન્ટર ઓફ માસ ને રેફરન્સ લઈને કેલ્ક્યુલેટ કરીને પછી પેલું કેલ્ક્યુલેટ કર્યું ને સર? આખું મેં જ કર્યું તો તારે રિપીટ કરવાની કઈ જરૂર છે? સર મતલબ સમજવામાં કન્ફર્મેશન માટે. ओके, कंफर्म कंफर्म। यू आर ब्राइट स्टूडेंट बस। Sir, हाँ ये बोलिए। ટ્રાન્સલેશન મોશન થી કરવું હોય તો કેવી રીતે કરાય? એટલે ભાઈ ટ્રાન્સલેશનલ મોશન માં પાછો એક અનનોન વધી જશે, રિએક્શન ફોર્સ, હા તો સર. તમારે પાછું રોટેશનલ માં તો આવવું જ પડશે। ટ્રાન્સલેશનલ મોશન થી કરવું હોય તો તમને પેલું જે રિએક્શન ફોર્સ લાગે ને કોઈન નું, એ તમને આપવું પડે। હા સર. ઓકે ચલો। સર ઇઝ ધ સ્ક્રીન ઇઝ બ્લર કે પછી બરાબર દેખાય છે? સર બરાબર Sir, છે. perfect. સર બરાબર દેખાય છે. ओके, सो लेट अस टेक एक्सरसाइज 7.7। जो बाकी है आपने बोलो। સર बोलिए बोलिए। સર પહેલા જે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી હતી એ પેલા 50 સેન્ટીમીટર પર હતી, પછી જે આપણે કોઇન્સ મૂક્યા એટલે થોડુંક પેલી સાઈડ જતી રહી ને 45। एग्जैक्टली 45 સેન્ટીમીટર ઉપર જતું રહ્યું પોઈન્ટ ઓફ બેલેન્સ, પણ એનું હા. વેટ તો સેન્ટર ઉપર જ લાગે ને। મીટર સ્ટિક તો ફિક્સ છે, એને તો તોડી નથી આપણે, એટલે એનું વેટ આખું જે હોય તે તો સેન્ટર ઉપર જ લાગે ને, એટલે એનું વેટ ત્યાં જ રહ્યું, પણ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી જે પેલા સેન્ટર પર હતી એ હવે 45 થઈ। ઓકે સર, ઓકે ઓકે। चलिए एक्सरसाइज 7.7 रीड कौन करेगा? सर may I? સર મે આઈ. Sir may पहले I? कोई गर्ल्स में से किसी ने No. बोला था, वो रीड करेगा। हाँ, sir, मैं- Two particles, each of mass m and speed v, travel in opposite direction along parallel lines separated by a distance d, so that the एक angular मिनट, एक मिनट। दो पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है। These two particles having same speeds, so both of them are having same speeds, and that speeds are given as v, बराबर। They are moving in opposite direction, बराबर, on a line which are separated by distance d। तो पहले मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। एक पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, इसका स्पीड v, मास m, बराबर है, ये जा रहा है सपोज ये डायरेक्शन, वही लाइन पे, लेकिन ये लाइन पे नहीं लेने का,
by the other line, लेकिन हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, that must be separated by distance d. यही हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे दूसरा पार्टिकल जो होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा होगा, उसका भी मास m लेकिन उसका स्पीड v. Getting with this? agree sir. Okay. Yes, sir. Sir, getting with this. चलिए तो आगे बोलिए. So that the angular momentum vector of the two particle system is the same, whatever be the point about which the angular momentum is taken. We want to prove that its angular momentum of this system of two particles remains constant whatever the reference point. आप reference point कोई भी ले लो, angular momentum constant आएगा, ऐसा प्रूव करने के लिए बोला है. So how can we solve this question is that you find out the angular momentum about the two or three different reference point, और अगर हर एक पॉइंट पे वो सेम आता है तो फिर आपका ये जो प्रूव करना है वो काम हो गया. तो पहले जो मैं रेफरेंस लेता हूँ ना, સર वो फर्स्ट તમારો અવાજ पार्टिकल. બરાબર નથી આવતો. Is this ના સર બરાબર આવે છે સર Perfect બરાબર આવે છે. okay? Perfectly तो audible. एंगुलर मोमेंटम अबाउट, पहले मैं ले लेता हूँ रेफरेंस फर्स्ट पार्टिकल. तो अगर फर्स्ट पार्टिकल को हम रेफरेंस लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हर एक डिस्टेंस वहां से कैलकुलेट करने का. वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. दो पार्टिकल है तो फर्स्ट पार्टिकल दूना सेकंड पार्टिकल. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, बराबर. r वेक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड p इज लीनियर मोमेंटम वेक्टर. तो जो હું શું કરું છું ચેક करो. फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर हम कंसीडर करते हो तो उसका डिस्टेंस फर्स्ट पार्टिकल से इटसेल्फ, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल ही रेफरेंस है, तो फर्स्ट पार्टिकल थी फर्स्ट पार्टिकल નું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? 0 Zero. આ તો 0 થઈ ગયું કારણ કે ડિસ્ટન્સ જ 0 થઈ ગયું. गेटिंग? Yes, Sir, sir. अब Getting जाइए your point, sir. सेकंड पार्टिकल पे जाते हैं. सेकंड पार्टिकल मतलब ये कैलकुलेट करने का डिस्टेंस फर्स्ट पार्टिकल से कितना डिस्टेंस है, ડી कौन सी डायरेक्शन में? ડાઉનવર્ડ. Minus પ્લસ j જે cap. કે પછી આને r વેક્ટર ની જગ્યાએ હું d માઈનસ j કેપ લખું તો ચાલે? हाँ, Sir, sir. Challenge, હા sir. સર. ओके. फिर इसका लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. कौन सी डायरेक्शन में? Negative x axis. માઇનસ આઈ Negative. કેપ Minus I वेरी cap. गुड. माइनस નેગેટિવ એક્સ આ એક્સિસ. પ્લસ आई गया. Positive. तो પછી હું આને આવું કરી દઉં તો ચાલે ને? d માઈનસ j કેપ क्रॉस mv i कैप. Sir, minus I cap Yes, नहीं. sir. हाँ माइनस आई. करिए सॉल्व. तो ये एंगुलर मोमेंटम करिए, आएगा, सर. मैग्नीट्यूड आएगा mvd माइनस j माइनस i, माइनस माइनस Plus प्लस हो K. जाएगा. j क्रॉस i Plus K cap. માઇનસ કે કેપ प्लस के मना साचू के जो. हाँ भाई माइनस સર माइनस માઇનસ प्लस કે के કેપ j. આવશે यस चलिए इक्वेशन 1 हो गया. इसको रखते हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट दिस अबाउट द अदर रेफरेंस. पहली बार फर्स्ट पार्टिकल को रेफरेंस लिया. नाउ अबाउट सेकंड पार्टिकल, मतलब अभी हर एक डिस्टेंस सेकंड पार्टिकल से कैलकुलेट करने का. सो L वेक्टर इज सम ऑफ L1 वेक्टर प्लस L2 વેક્ટર L2 vector. L1 वेक्टर इज फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम. फॉर्मूला यही लगेगा r क्रॉस p. फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस सेकंड पार्टिकल से कितना? ડી in the upward direction. Plus डी J जे cap. Positive J cap. चलो डीजे वगाड़वा वालों नहीं, Plus हाँ? J. डीजे के कैप. और ये हो जाएगा p, दैट इज mv i પ્લસ कैप. આઈ કેપ પોઝિટિવ Plus એક્સ I cap. એક્સિસ પર. અરે વાહ, દાદા હોશિયાર છો હા તમે બાકી. સર તો પછી યસ sir. Sir, तुम्हारा स्टूडेंट है. हाँ डी जे कैप हो गया और ये हो गया एम वी आई कैप. ऑलराउंडर છો બધા. સર सेकंड L2 पार्टिकल का प्लस 0 जीरो हो जाएगा. सो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड तो उसका उतना ही रहेगा एम वी डी. जे क्रॉस आई માઇનસ કે કેપ Minus K. Minus. भी माइनस के कैप आया. तो देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम भी एम वी डी माइनस आई के कैप, इसका भी एम वी डी माइनस के कैप. હજી भी એક રેફરન્સ લઈ લે એટલે હજી ઈઝી થઈ જાય. ચાલો મિડલ હવે કોને રેફરન્સ લેવાનું? એકવાર આને લીધું ને એકવાર આને લીધું તો P by મિડ પॉइंट 2. पे ले लो ना. ये मिड पॉइंट पे ले लेता हूं मैं. 6 सेंटीमीटर पर.
એ બરોબર 6 સેન્ટીમીટર કઈ ડિસ્ટન્સ કઈ 12 આપ્યું છે D/2 સર. d/2 થશે ને વધારે હોશિયાર નહીં થવાનું હો પાછું हाँ सर अबाउट मिड पॉइंट चलिए मिड पॉइंट तो भाई प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा कि एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर बराबर है फर्स्ट का कैलकुलेट करने का मिड पॉइंट से तो फर्स्ट का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा हाँ Positive J by 2. x एक्सिस d/2 j कैप यस सर इनटू MV. mv MV i कैप बराबर है यस सर सेकंड के लिए Sir, कंसीडर yes. करोगे तो ये d/2 माइनस j Minus J cap माइनस into MV minus I. इंटू MV into माइनस MV चलिए सॉल्व कीजिए तो पहला हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा mv d/2 અને બાકી રહે j क्रॉस i Minus K cap. માઇનસ वेरी गुड सेकंड को सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड mv Same. d/2 एंड माइनस j क्रॉस तो माइनस माइनस तो प्लस नहीं होगा Minus. माइनस i अरे आ भी mv d/2 आ भी mv d/2 બેવમાં માइनस k कैप એટલે ऐड कर दो એટલે MVD minus K cap. अरे ये भी वही आया देखिए यस सर સર યસ. फर्स्ट का Sir, लिया yes, same सेकंड to रेफरेंस same. लिया या थर्ड सेम आया बराबर तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड Copy 3 to वी कैन copy. से दैट कि अगर आप रेफरेंस कुछ भी बदलो लेकिन उसमें एंगुलर मोमेंटम में कुछ डिफरेंस नहीं आता है दैट मींस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट Constant. ये रेफरेंस बुक में गलत थोड़ा सा दिया है क्योंकि उन लोगों ने वेक्टर प्रूव नहीं किया है आपको पूछा गया है कि प्रूव दैट वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट એટલે બધામાં માઈનસ k કેપ આવવું જોઈએ that we have taken सर પેલી Is it સાઈડ okay with વાળી બોર્ડ नहीं देखा तू साइड सर थोड़ो राइट साइड पर करो फोन हाँ 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 चलिए अब देखाऊं ना सर थोड़ું કપાઈ ના ગયું. સર હજી થોડું બાકી Right. બોર્ડ ને થોડું લેફ્ટ લો ને સર. Sir, बोर्ड this के is लेफ्ट sir, ना लेवाला perfect. भाई, हाँ, जेना હવે को सेम perfect रखो છે. એટલે। હા परफेक्ट સર. बराबर तो ये ओरिजिनल इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये है जिसमें हमें वेक्टर भी आना चाहिए माइनस के प्राणे में आया हुआ એટલે આપણું राइट ताकि वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट ऐसा पूछा है इसलिए ठीक है Yes, sir. ठीक है. सर हाँ yes you ठीक है, write sir. it down this is there any doubt regarding this No, sir. No, Clear sir. to my you write Sir, no. okay સર હેલો સર. સર સર હેલો.
हेलो सर। सर हेलो। 1 2 3 4 mic testing. બોલો. હા સર અગર 2 માર્ક માટે આ પૂછ્યો હોય ને તો આ હા. બે હા, તો સર 2 રેફરન્સ ફ્રેમ થી લઈએ તો ચાલે? એટલે 2 રેફરન્સ ચાલે પોઈન્ટ. ચાલે ચાલે સર ચાલે. ઓકે.
Is this completed? Should I proceed Yes, further? sir. Yes, સર sir. લાસ્ટ Sir, yes. Last બાકી છે. Okay. દેખાય છે ને બરાબર? हाँ सर. As per crystal clear. સર क्या બોલીએ યશભાઈ? સર આ જે પેલું L1 વેક્ટર છે તો પેલું 0 લખ્યું ને તમે, તો એમાં મતલબ એવું છે ને કે R વેક્ટર જે છે એ 0 થઈ જશે, એટલે પછી ક્રોસ થઈ એટલે 0 પ્રોડક્ટ આવી જશે, એવું ને? બરાબર છે. એટલે 0 ક્રોસ P વેક્ટર એ તો 0, એવું ને? બરાબર છે. હા તું એટલું રિપીટ કરે તું ભણાઈ દે ને બીજી વાર. બરાબર કે છે, પણ તું જે બી કહે છે રિપીટ કરે છે બરાબર કરે. चले फिर वो आपने असाइनमेंट, अरे हाँ टेक्स्ट बुक में अभी कुछ बाकी है, पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए. इज देयर एनी एक्सरसाइज क्वेश्चन, इज देयर एनी एग्जांपल व्हिच इज रिमेनिंग विद? Sir, example 15th. 15? Yes, sir. ये तो પેલો રિપીટ નથી કે બાકી છે? સર નહીં કરાયો? ચેક કરજો હા એક વાર ભાઈ. હજી કોઈ બાકી બાકી ના છે, રહે સર. ખાસ જોજો. Example બાકી બાકી છે. છે. Sir, બાકી જ છે. ઓકે. So let us take that. બીજા કોઈ બાકી રહી ગયો હોય તો બી કહેજો હા. હા સર. चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. Now enough time is given to you to solve this. चलिए 3 एग्जाम्पल रीड करने के लिए कोई वॉलंटियर चाहिए? સર मैं Sir, हंस भाई आप रीड करेंगे. Can ओम नो I? टर्न आएगा एक बार कोई नो टर्न आएगी ओम नो आएगा एक बार. आंसर तो Sir, સર मैं मैं कर જ હતો. Sir, मैं कर दूं? ના તમારે બે સિવાય કોઈ ત્રીજું? sir, હું અંશ. हाँ Sir, 7.15. यस. चलिए દેખાય છે બરાબર? કટ થાય છે? Ah, sir. Perfect. Okay. A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeters. एक मिनट. फॉर फ्लाईव्हील इसका रेडियस कितना दिया गया है 20 centimeters. एंड मास 20 kg. ओके. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord. 25 न्यूटन का स्टडी पूल आपने अप्लाई किया. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. बेरिंग्स पे ये फिक्स कर दिया है फ्लाईव्हील को. तो ये प्योर रोटेशनल मोशन करेगा ऐसा आपको समझा रहा है. Calculate the angular acceleration of the wheel. अल्फा कैलकुलेट करने का. Find work done by the pull when 2 meter of cord is unwound. 2 मीटर कॉइल जो कॉर्ड है वो अनवाउंड हुआ तो कितना इस पे वर्क डन होगा ये फाइंड करना. Find also the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that it Okay. starts from rest. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा और नेक्स्ट में आपको पूछा होगा कंपेयर द अबव टू आंसर्स मतलब वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का आंसर कंपेयर. दिस इज मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ये क्यों बाकी रह गया पता नहीं मेरे को, लेकिन जो भी है हो जाएगा. ठीक है देखिए ये फ्लाईव्हील होता है. फ्लाईव्हील इज लाइक अ डिस्क. ये बॉल बेयरिंग जहां पे से ये घूम सकता है. बॉल बेयरिंग बताने का मीनिंग ये है कि भाई ये प्योर रोटेशनल मोशन करेगा. इसका रेडियस आपको दे दिया गया है. ये वायर इस पे माउंट किया है उसका मास नेग्लिजिबल है तो ये
जैसे ही वायर को आप खींचोगे 25 न्यूटन से, वो एक उस पे टॉर्क अप्लाई करेगा जिसकी वजह से वो रोटेशनल मोशन, ऐसा आपको बता रहा है। ये फोर्स आप ऐसे अप्लाई करोगे, जैसा हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था सिलेंडर वाला। पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। So this B is like a disk. Disk का moment of inertia होता है mr square by 2. So it will be mass is 20, radius 20 सेंटीमीटर तो नहीं चलेगा, तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 10 हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएगा, इंटू 10 करोगे तो 0.4 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। You agree with me? Yes, sir. Agree, sir. Agree. Okay. Now we want to find out alpha. For that being, we know moment of inertia. Do you know any formula? Do you know any formula of this angular acceleration alpha in terms of I? थोड़ा याद कीजिए, बताइए। हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि टॉर्क इज आई अल्फा। अगर कहीं से हम टॉर्क फाइंड कर ले तो आपका आई तो है, तो अल्फा मिल जाएगा। तो as we know that, हाँ, टॉर्क का डेफिनेशन होता है आर एफ, लेकिन यहाँ पे आर और एफ एंगल तो परपेंडिकुलर है, तो sin 90 हो जाएगा। टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू विच इट रोटेट इज 0.225 and sin 90 is 1. So the torque acting on it can be written as 25 into 2, that is 50 by 10, तो 5 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क मिल गया। टॉर्क मिल गया तो हमने फॉर्मूला तो पहले ही डिसाइड किया था कि टॉर्क इज आई अल्फा, इसमें से आपको अल्फा मिल जाएगा। सो इट विल बी टॉर्क अपॉन 5, सो दैट विल बी 5 अपॉन 0.4। इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 50 by 4, बराबर, तो 12.5 if I am not wrong रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। प्योर रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आई ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन इसके लिए ओमेगा तो चाहिए ना, Yes, बराबर sir. है। तो हमें पहले तो ऐसा पूछा गया है कि व्हेन इस पे जो कॉर्ड लगा है, वायर लगा है, इज अनवाउंड बाय r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बोला है ना, 2 मीटर बोला है, 2 मीटर। 2 मीटर। तब इस पे कितना वर्क डन लगेगा? आप मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला बताइए। रोटेशनल मोशन, Force into distance. टॉर्क इनटू लीनियर मोशन, टॉर्क इनटू इसमें हो जाएगा थीटा। टाउ थीटा। टॉर्क इनटू थीटा। तो इसके लिए थीटा तो चाहिए ना पहले। Yes, sir. थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये आपने इसको अनवाउंड किया 2 मीटर से, बराबर, उससे कितना एंगल प्रोड्यूस हुआ वो थीटा। एंगल आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, एंगल इज आर्क अपॉन ऑफ रेडियस। रेडियस। Radius. Radius. कितना आपने अनवाउंड किया इसको? 2 मीटर। 2 मीटर। 2 और meter. इसका रेडियस कितना है? 0.2 meter. 2 मीटर। बराबर है। तो ये मिल जाएगा आपको 2 मीटर का आर्क आपने अनवाउंड किया अपॉन 0.2 मीटर का इसका रेडियस है। तो सॉल्व वाह। कीजिए, तो थीटा विल यू गेट एज 10 रेडियन। 10। चलिए, थीटा मिल गया तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। ये मैंने टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग किया है, कि ये मैंने थोड़ा इजी कर दिया, आपको प्लेन एंगल के डेफिनेशन से करवा दिया। वर्क डन इज टाउ इनटू थीटा, सो वर्क डन इज 5 into 10, 5 50. into 10 50 जूल। चलिए, वर्क डन भी मिल गया। अभी मेरे को थर्ड पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ आई ओमेगा Half स्क्वायर। I omega हाँ, square. 5 इनिशियली तो वो रेस्ट पे था, तो ओमेगा 0 0 था, इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो मेरे को ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। अगर मेरे को ओमेगा मिलेगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आप डाल के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ओमेगा फाइंड करने के लिए मेरे पास अल्फा है, थीटा है, ओमेगा 0 है। व्हिच इक्वेशन शुड आई अप्लाई? Omega Omega 0 plus square is equal to 2 half alpha. AT.
ए टी वाળું ના ચાલે, टाइम નથી. हाँ सर, हाँ हाँ. चलिए ओमेगा स्क्वायर इनिशियली तो 0 है, इज 2, अल्फा मिला आपको 12.5 और थीटा मिला आपको 10, so that will be 25 into 10 तो 250. 15.81. ચાલશે હમણાં રાખો ને, रेडियन पर सेकंड का द होल स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर को रखता हूँ क्योंकि पूछा नहीं है ना, आपको फाइंड करना है तो कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट. अभी आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आया आपका 0.4. એટલે જ મેં છે ને પછી ઓમેગા નો સ્ક્વેર રૂટ ના કાઢ્યું, કારણ કે સ્ક્વેર રૂટ કાઢીને પાછું અહીં સ્ક્વેર કરવાનું કરતા સ્ક્વેર માં જ રહેવા દેવાનું ને. So 50. 50 आ रहा है. हाँ सर. यस 50. लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कंपेयर द आंसर्स ऑफ वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी. तो आप देखिए वर्क डन इज 50 जूल. अब 1:1. चेंज इन, हाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे तो फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, पर इनिशियली तो वो रेस्ट पे था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 50. 50. और ये आपको ऐसा बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बट रोटेशनल काइनेटिक. अरे इसको तो कुछ बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड Work energy theorem. Energy theorem. For वर्क constant. एनर्जी थियरम बट फॉर रोटेशनल मोशन. Yes गेटिंग sir. विद दिस? पता चला? चल गया सर पता. Yes, sir. Clear? Yes. चलिए, is there any other example, any other exercise questions which is remaining? No, sir. No sir. Sir no. Okay. Confirm? Sir confirm. સર Confirm sir. Okay. સર બોલો. સર આ પેલો વાળો સ્ટેપ છે ને રોટેશનલ કાઇનેટિક એનર્જી પછી જે પેલો ઓમેગા ઇક્વલ્સ ટુ 0 લીધું ને એ ના ખબર પડી. ઓમેગા ઇક્વલ ટુ 0 લીધું નથી, આપ્યું છે. મેં નહીં લીધું. એવું કીધું છે કે it starts from rest. I have not taken it. चलिए आप मेरे को ये बताइए कि ये आपको एमसीक्यू असाइनमेंट ऐसा कुछ मिला होगा, उसमें आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? हमने यहाँ पे आई थिंक सो 26 तक करवाए थे ना, अब नहीं मुझे याद नहीं. 23 से बाकी होगा. ના સર 25 સુધી તો થઈ ગયા હતા. 23 છે બેટા મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા વાળો છે, કે થઈ ગયો તો કન્ફર્મ છે, તો મને કોઈ વાંધો નથી થઈ ગયો. સર ના મેં સર સર, મેં 23 નથી નહીં થયો. કર્યો. 20 to 23 23 બાકી નહીં હતા. કર્યો. હા અને પછી તમે લોકોએ કેટલા સોલ્વ કર્યા એ મને કહો ને, મેં તો બરાબર છે. હવે how many questions you have solved? reply me in chat box honestly, કેટલા તમે સોલ્વ કર્યા? મેં પહેલા બે વાર કીધું તું લાસ્ટ ટાઈમ. you try it, don't have a habit of spoon feeding. તમે કેટલા સોલ્વ કર્યા? સ્ક્રીન બોલો જતી બોલો. રહી. આવશે આવશે, હા બધું જ આવશે, શાંતિ રાખો. એ તો હું ટાઈમ આપું છું લખવા માટે, પણ how many questions that you have solved? કોઈ રિપ્લાય જ નહીં કરે ને, એટલે કર્યા જ નથી. પ્રોબ્લેમ જ આ છે તમારો. તમને લોકોને આટલી બધી વાર કહે છે કે તમે સોલ્વ કરો, જાતે ટ્રાય કરો, પછી डाउट्स હોય પૂછો, बट you don't want to do that. आपको करना ही नहीं है ये. अभी 7th चैप्टर कंप्लीट हो गए, 7th ये कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको इतना नहीं पता चलता है कि अगर हमें एग्जाम देना है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा अपने आप. બધા થોડી અમે કરાઈએ, એક્ઝામ भी અમે આપી જઈએ તો થાય પછી. हाँ, that you should have that guts to solve it. जिसको अच्छा रिजल्ट लाना है, जिसको कुछ नहीं ही करना है, उनके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. अगर ऐसा पढ़ना है then you are wasting your time and your parents time also and our time also. अब वही શું मतलब છે? और आपको इसका अच्छे से टाइम टेबल भी बना के दिया है कि रोज के 10-10 15-15 करो,
तो आराम से जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका असाइनमेंट उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। फिर एक साथ जब डाउट सॉल्विंग होता है तो डाउट पूछिए। आई हैव सीन दैट फ्रॉम सो फार कि जिन लोगों का बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आता है, दे आर हैविंग दिस मेथड। खुद का स्टडी तो करना पड़ेगा ना, आप सब तो हम पे डिपेंड हो जाते हैं कि सर करवाएंगे तो करेंगे वरना चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, टेल मी रीजन व्हाई यू हैव नॉट सॉल्व्ड। कि કરવાની દાનત જ નથી, શું છે બોલો। આમ તો બધા ધૂમ ધડાકા કરતા હોય છે, અમે આમ કરી દઈએ, અમે આમ કરી દઈએ, અમે તેવું કરી દઈએ। जय गुजराती ने मेरे को मैसेज किया है, उसके 32 32 35 इतने सारे सॉन्ग थे, गुड। કેમ બાકી બધા તો ખાલી હરવા ફરવા જ આવે છે। वेरी बैड, हाँ। चलिए, आई ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम दी लास्ट क्वेश्चन, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 सबसे पहले आएगा। वॉलेंटियर चाहिए मेरे को रीड करने के लिए। સર 1 મિનિટ લખી દઈએ। ના પછી સાથે લખો ને બધું, કે લખી દેવું છે? લખી દો, ચાલો લખી દો। हो जाए तो बोलिए मेरे को। स्टिल चेक कर लीजिए टेक्स्ट बुक में कुछ बाकी ना रह जाए। Sir, done.
Yes, completed. Yes, sir. Yes. Sir, yes. Okay, so we'll solve in a reverse order. Some sort of your MCQs. Other you try at home. Ask us a doubt. So we will start from question number 80. I want a volunteer to read question number 80. कौन help करेगा? Sir, may I? Yes. For a planar body in YZ plane, which of the following is correct? तो ये तो theoretical question हो गया कि YZ plane में body है तो theorem of perpendicular axis लगाओ तो x axis will be perpendicular तो IX will be equal to IY plus IZ. कौन सा option है ऐसा? B. Sir, B for Bombay. चलिए now we'll solve 79. Volunteer to read it. Sir, may I? करो. Yes. Suppose the Earth suddenly contracts and its radius become r by 3 as the present radius of Earth, keeping its mass same. Then what will be the length of the day? देखो अभी R1 इक्वल टू R रेडियस से प्रेजेंट तो अभी प्रेजेंट डे 24 आवर्स का होता है अगर ये रेडियस को हमने कम करके R/3 कर दिया मास कांस्टेंट रख के तो फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा है नाउ अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर बराबर अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर मास तो कांस्टेंट रह रहा है ऐसा हमें बताया है अर्थ को कोई धक्का नहीं लगाने जाता है अपने आप रोटेट करता है अपने आप रोटेट करता है मतलब टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो टॉर्क इज जीरो दैट मींस एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट तो पहले जितना होगा उतना ही बाद में होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा इसका हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इसका हो जाएगा I2 ओमेगा इसको हमें टाइम पीरियड के टर्म में लाना है सॉलिड स्फीयर है पहले रेडियस r था तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 m पहला रेडियस r r² इनटू ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में लिखो तो 2π/20 t तो पहले टाइम पीरियड t1 था 24 आवर्स बाद में डालेंगे फिर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mass remains constant now the radius becomes r/3 R by 3 square. Square by 9. r/3 का square and this is 2π/t2 T2. 2/5m 2π cancel out यहाँ पे r² और यहाँ पे r² ये 9 हो जाएगा इतना ध्यान रखिएगा this becomes 1 upon of t1 and this becomes 1 upon of 9t2 so t2 can be written as t1 by 9 पहले जो 24 hours था that will be now 24 by 9 it will be I think so 2.667 okay and the 7 लखी दो तो चल सकता Option D. okay so now the day will become of 2.7 hours बराबर इसका एक शॉर्टकट है अगर आपको याद रखना है कि रेडियस अगर 1/3 हुआ ना तो if the radius becomes r/n times where n is the n can be 2 3 4 5 8 whatever it is then time period becomes t/n². जो અહીંયા 3 આવે it becomes 1/3 तो પછી અહીંયા 9 કરવાનું જાવ થાવ अगर यहाँ पे r/4 होगा तो यहाँ पे 16 आएगा सपोज 4r होगा तो n की जगह पे 1/4 लेके करने का गेटिंग विद दिस Yes, sir. चलिए देन क्वेश्चन नंबर 78 volunteer to solve it or read it solve तो Sir, क्या may I? એના માટે આવડવું જોઈએ અલા આમાં મે આઈ કરે છે તો સોલ્વ કરવામાં તો જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે તો મે આઈ નહીં કરતો કેમ હે ત્યારે તો બોલતી બંધ થઈ જાય છે चल कर रीड Sir, the moment of inertia of solid sphere of radius about tangential axis is dash. सॉलिड स्फीयर का टेंजेंशियल एक्सिस से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ये तो टेक्स्ट बुक में भी किया था
सॉलिड ऑफ स्फीयर का अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, अबाउट टेंजेंट फाइंड करना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस का, I इक्वल टू IC प्लस mr²। अला आटला इजी क्वेश्चन ना था, ट्राई करियो तो 110% થાય જ। पर अपने पास टाइम ही कहाँ है, शेड्यूल इतना टाइट होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इसमें से फ्री हो गए तो ये करेंगे ना। चलिए सेवेंटी सेवन बोलिए कौन है वॉलंटियर रीड करने के लिए। सर मैं करूं? हाँ बोलो। The unit of ratio of moment of inertia to angular momentum is। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम, इसके यूनिट का रेशियो चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², इसका हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है mvr, इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, 1/सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 76। Will be that volunteer to read it? Sir, may I? Yes. If axis of rotation of two identical cylinder, one solid and other hollow, is taken as geometrical axis, then the ratio of radius of gyration of solid one to that of hollow is dash. सॉलिड सिलेंडर का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो तो mr²/2 होता है। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है वो r/√2 हो जाएगा। होलो स्फीयर होता है उसका मोमेंट, सॉरी होलो सिलेंडर होता है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन r हो जाएगा। हमें पूछा है कि आप इसका रेशियो फाइंड करके दीजिए सॉलिड टू होलो, so it will be r/√2 upon r, r get cancelled out, so it will be 1/√2। चलिए नेक्स्ट। सर मे आई? ये तो कर दिया हमने, देखो एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू द मिनट हैंड आर ऑफ द क्लॉक, ये तो हो गया है। यस करवाया था। 74 रीड 60. सर मे आई? हाँ यस। A slope makes an angle 30 degree with horizontal. A solid sphere rolling down this slope has a linear acceleration of। सॉलिड स्फीयर का लीनियर एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा पे फाइंड करना है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m², तो k² हो जाएगा 2/5 r²। आई एम टॉकिंग अबाउट k²। पूछा है एक्सेलरेशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वी नो द फॉर्मूला g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r, so it will be g sin 30 upon 1 plus k² is 2/5 r² upon r², so it will be g sin theta is 1/2, 1 plus 2/5 is 7/5, तो 5 को ऊपर ले लीजिए, 2 को नीचे लीजिए, it will be 5g/14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर मे आई? यस સર चलिए। આ લાસ્ટ વાળો સ્ટેપ એક્સપ્લેન કરો ને તમે જે કર્યો એ। कौन છે શ્રેયા બેન? આ g/2 છે, આ 7/5 છે। डिनोमिनेटर નું डिनोमिनेटर न्यूमरेटर માં જાય એટલે 5 જાય, 5 થઈ જાય અહીંયા ઉપર, તો 5 * g, આ 2 નીચે આવી જાય એટલે 7 to the 14। ओके હા સર ખબર પડી। ओके चलिए नेक्स्ट 73। सर मे आई? हाँ यस। A hollow cylinder of mass m and radius r and height 20 meter rolls down an inclined plane without steering. Its speed when it reaches। होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं जिसका मास हमें दिया गया है
capital M. and radius r. बराबर. It's rolled down on an inclined plane having a height of 20 meter. 20 meters. इंक्लाइन प्लेन का हाइट 20 मीटर दिया. हमें पूछा है इसका वेलोसिटी, जी को 10 लेना है. अब जानते हो इंक्लाइन प्लेन पे होलो सिलेंडर है, सिलेंडर है ना, तो k स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर. तो v का फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. सो इट विल बी 1 2 g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20, 1 अपॉन ऑफ k स्क्वायर इज r स्क्वायर. r square cancel, 1 plus 1 is 2, तो 2 cancel થઈ જશે. It will be under root of 200. 200 નો square root કાઢો 141.14. હા 14.14. થઈ જશે. Are you clear with this? Yes, चलिए 72 volunteer. Sir, may I? Sir, may I? Yes. Sir, may I read? An artificial satellite orbiting around the Earth has mass of 200 kg. What will be its aerial velocity if its angular velocity is 8 into 10 raised to power 6 joule second? એ ભાઈ angular velocity Angular angular momentum. છે. हाँ, angular momentum sir. હા, તને બી ઊંઘ આવે છે. એકચ્યુઅલી ક્વેશ્ચન જોયા ના હોય ને એટલે રીડ કરવામાં તકલીફ થાય. અસાઇનમેન્ટ ઘરે ખોલીને જોયું હોય તો વાંધો ના આવે. आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मास 20 kg, 200 kg. हमें पूछा इसका रियल वेलोसिटी. सर ये रियल वेलोसिटी क्या होता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको एज चैप्टर में आएगा. एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया स्वेप्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, એટલે dA by dt. આનું ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું, ઇટ ઇઝ L by 2m. एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास, 2 टाइम्स मास. एंगुलर मोमेंटम आपको दिया है 8 into 10 to the power 6 जूल सेकंड. बस तो एंगुलर मोमेंटम है m है तो एरियल वेलोसिटी मिल जाएगा. एरियल वेलोसिटी इज dA by dt. 4 into 10 raised to 4. That will be 8 into 10 to the power 6 upon 2 into 200. बराबर. 2 થઈ જશે અને into 4 થઈ જશે. It is area by time, તો meter square per second and unit. Getting with this? Sir, Yes. sir, aerial velocity પેલું કેપ્લર સેકન્ડ લો માંથી. Exactly. किसने पूछा ये? સર વ્રજ. બસ તું આટલું બધું આગળ સોલ્વ કરે છે તો આ અસાઇનમેન્ટ ના ક્વેશ્ચન કેમ સોલ્વ નથી? સર એ તો ખાલી પહેલા યાદ હતું એટલે બાકી આગળ નહીં કર્યું. ओके. 71 क्वेश्चन तो आपको पता है, आपने पढ़ा है. સર એની dl ઉપર by dt થઈ ગયા થઈ છે. ગયો છે ને? હા સર. dl by dt तो टॉर्क होता है. टॉर्क होता है I into अल्फा. डी I ओमेगा into d ओमेगा by dt. 70 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो. Sir, થઈ ગયો છે તો. 68 भी થઈ ગયો. 60. ओके. Sir, ત્યાંથી બસ 60 તો સુધી બધા થઈ ગયા છે. સર આ આટલા 59 લખી થી દો. કરવાનું. બસ તો પછી આટલું લખી દો તમે. પૂરું કરી દો પણ ટાઈમ નીકળી જશે. અને પછી 59 થી તમે જ સોલ્વ કરવાનું ટ્રાય કરો. જે ડાઉટ હોય અમને પૂછો. ચલો હું જ આપી દઉં બધાને એટલે બધાએ કરવું જ પડે. નાઉ અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર કલ આएगा ना? હા આ સર સર. કાલે છે. હા તો તમે Yes, એવું sir. કરો ને 59 થી લઈ અને 40 સુધીના બધા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરજો. આટલા તો થઈ જાય ને આજે ટ્રાય હા કરો સર એટલે. થઈ જશે. હા બસ આટલા બધાએ સોલ્વ કરવાના ને એના ડાઉટ મને પૂછવાના. આમ તો બધા થઈ જાવ જોઈએ પણ 59 to 40 તો કરો પેલા. સર હા ઓકે. સર ટ્રાય કરીશું. ઓકે. યસ. સર એકવાર રિપીટ ટ્રાય કરીને કેટલા કરો. કરવાના? સોલ્વ કરતા નહીં આવડે તો બી ચાલશે. ટ્રાય કરો એટલીસ્ટ. At least develop a habit to read these questions. इसमें डाउट है? इतने जो क्वेश्चंस किए उसमें से कोई? નો સર. હા સર.
Yes, any doubt? સર સ્ક્રીન ઊંધી થઈ ગઈ. एक मिनट. दक्ष भाई क्या रिपीट करने को बोल रहे हो आप? है भाई दक्ष भाई, तब से कई कीधું છે કે રિપીટ કરો, શું રિપીટ કરવાનું છે? यस. Is this completed? Should I take one or two more questions? Yes. Completed, please confirm. तो પછી એકાદ બે તમે ક્રિટિકલ ક્વેશ્ચન કરાવો બીજા. हो गया है तो नहीं યસ हुआ? સર થઈ ગયું. ओके. એક મિનિટ લાસ્ટ વાળો બાકી છે. हाँ लखी दो लखी.
चलिए यस Sir, done. ओके जो 41 क्वेश्चन जो તમારાથી થઈ જશે જાતે you can solve it मैं रीड करता हूं आप सॉल्व कीजिए it is given that the moment of inertia of body about the given axis is 1.2 kg meter square तो आप लिख दीजिए I का वैल्यू दिया है आपको 1.2 ये हो गया होगा ना बाकी है 41 हो गया है બાકી છે સર. બાકી हाँ છે तो સર. પછી I is 1.2 kg meter square initially the body is at rest એટલે ઓમેગા 0 का वैल्यू 0 दे दिया है लिखा Yes, sir. it is given that in order to produce a rotational kinetic energy of 1500 joule मतलब आपको kr rotational kinetic energy का वैल्यू दिया है 1500 जूल and acceleration angular acceleration 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर तो अल्फा का वैल्यू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया है कितने टाइम के लिए आपको टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको पूछा टाइम पीरियड टी स्मॉल टी સર મેં जो કહું તમારી પાસે આ હા શું કરીશું બોલો સર કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હાફ I ઓમેગા સ્ક્વેર તો ત્યાંથી ઓમેગા મળી જશે કેમ કે કાઇનેટિક અને I બંને given છે અને પછી ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઓમેગા પ્લસ આલ્ફા ટી ફોર્મ્યુલા છે. એમાંથી ટાઈમ મળી જશે एग्जैक्टली यू आर करेक्ट वेरी गुड सॉल्व कीजिए पहले k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डालिए और उसमें से ओमेगा कितना आता है वो मेरे को बताइए कितना आया ओमेगा सर 50 સર 50 50 आया ओके 50 रेडियन पर सेकंड अब आप वो इक्वेशन लगा दो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और उसमें से ओमेगा नॉट तो 0 है ओमेगा आपको मिल गया अल्फा है तो टी मिल जाएगा कितना आया बताओ मेरे को સર 2 સેકન્ડ वेरी गुड और इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर हाँ सर आई गया 2 सेकंड. जो अब अगर मैं आपको ऐसे सॉल्व करवाता हूँ कोई कोई क्वेश्चन हिंट देके तो आप अपने आप सॉल्व कर रहे हो तो फिर बस वो हिंट अपने आप लेना है और अपने आप सॉल्व करना यही तो आपको सीखना है एंड सेकंड थिंग आई वांट टू आस्क यू डज इट रियली हेल्पफुल मैं आपको ऐसा जो सॉल्व करवाता हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाता हूँ आपको हिंट देके आपके पास सॉल्व करवाता हूँ ये अच्छा रहता है यस सर. हाँ सर. ओके ओके गुड चलिए चलिए एक लास्ट क्वेश्चन टुडे मैं हिंट दूंगा और आपको सॉल्व करना है 46 क्वेश्चन आपको पूछा है कैलकुलेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी એટલે kr फाइंड करवानो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसका फार्मूला आपका है हाफ ओमेगा स्क्वायर वो फाइंड करना है अर्थ के लिए तो फॉर अर्थ ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस जिसका मास आपको दिया है m इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg मैं 46 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg अर्थ का और उसका रेडियस 6400 किलोमीटर तो पहला तो ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दो इट विल बी 6.4 into 10 to the power 6 meters होगा do you agree with me यस सर. Sir, yes. अभी उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो डालिए हाफ I ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आर यू हैविंग अ वैल्यू ऑफ आई यस सर 2/5 Yes. आर यू हैविंग वैल्यू ऑफ ओमेगा नो सर. એના માટે શું કરવાનું આવું કરી દેવાનું જો હાફ
आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। आई तो आपने बोला 2/5 ठीक है, एम है आर है तो ये तो मिल जाएगा। अब कौन, अरे इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t। अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है तो 24 आवर्स लेता है ना। यस सर। ये 2 कैंसिल कर दो पहले तो। दिस इज 1/5, मास डाल दीजिए 6 × 10⁻24, रेडियस इज 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, 2π स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर अपन टी 24 आवर्स, लेकिन आवर्स नहीं चलेगा तो 24 × 3600 सेकेंड उसका स्क्वायर, तब आपको आंसर मिलेगा। कैन यू डू इट योरसेल्फ? यस, कर सकते हो? Yes, sir. यस सर। ओके, तो चेक कीजिए कितना आंसर आता है, कि घर पे कर लोगे? कितना आंसर आया बताइए? सर 1 मिनट। जो आप पाई स्क्वायर नहीं हुआ है तो 10 रख देवानो, मतलब 5 पूजा થઈ જાય। कितना आंसर आ रहा है? 5 पाई स्क्वायर में 2 क्यों डाल दो, 4 2 जा 8, 8 × 6 48 × 6.4 × 6.4, पावर हो जाएगा इधर 12 और इधर 24 तो 36, नीचे 24 × 24 × 36 × 36 આ 10⁻2 છે, સ્ક્વેર કરશો એટલે 4 થઈ જશે, तो इजी हो जाएगा। 24 2 जा, अभी कर दीजिए कितना आता है, 6.4 × 6.4 × 2 अपॉन दिस, कितना आ रहा है बताइए? 0.1.2 1.2 into 10⁻30. Power 29. × 10⁻30 हाँ आ रहा है सर। ऐसा आंसर? 6 है। 1.26 એટલે 2.6 into 10⁻29. ओके, आर यू गेटिंग दिस? ખબર પડે છે? टू 2.6 into 10⁻30 આવે છે ને, તો 226 into 10⁻29 ચાલે, બરાબર છે। All of you getting this? Yes sir. यस सर। Okay, चलिए, then this is more than enough for today. Goodbye, good day। आपको कल वो जो असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कंप्लीट करने हैं, and after completing that we will start with chapter 8। Bye।